Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you're all fine at your homes. Students, as we have completed our Unit 4 in the last class and we have done with exercise, now we are moving to the Unit 5 in computer education, and the unit is computer programming. And the topics that we are going to discuss are computer programming, what is computer program, then comes the programming languages and constants and variables. So, what is a computer programming? Programming. Generally, we know that whenever ing comes with any word, it shows the process, going on process, continuous process. So, what does this computer programming? It's a process that professionals use to write code that instructs how a computer, application, or software program performs. Means computer programming is the process in which professionals write the computer programs, write the different instructions using different computer programming languages in their syntax, and gives this instruction set to the computer to perform certain tasks, because no computer can do anything until a computer programmer tells it to behave in specific way. That's what the computer programming is all about. So computer programming is a process in which we are writing the computer programs using the computer programming languages in their correct syntax, and the person and the professional who is involved in this process, he is called or she is called computer professional or computer programmer. What is computer program? It's a detailed plan or procedure for solving a problem with a computer, more specifically an unambiguous ordered sequence of computational instructions necessarily to achieve such a solution. The distinction between computer program and the equipment is often made by referring to the former as software and latter as hardware. To make it simple, that computer program is actually an ordered set of instructions, ordered sequence of computational instructions which are necessarily to achieve a solution. If we want to perform certain tasks by the computer or by the computer system, we need the computer programs, and these computer programs are actually performing their task on some soft part and on some hard part. That soft and hard are physical or non-physical, tangible or intangible components are referred as software and hardware. Intangible or non-physical part are software, and tangible and physical are hardware. Means the devices that we need for the computer program to run, those devices, those equipments are called hardware, whereas the soft instructions, softwares that are necessarily to perform certain computer programs, that group of instructions, that group of soft side of computer programming is called softwares. In very simple way, these are the driving forces of hardware. Softwares are the driving forces of hardware, whereas hardware is the main physical tangible components of the computer system. Here comes the computer programming language. Programming language is a computer language programmers use to develop software programs, scripts, and other sets of instruction for the computer to execute. In generally, how we define the language? Language is a set of our platform where we communicate. Means it's a tool of communication. With language, we communicate with each other. With using textual language, just as we are using the text and we are exchanging this information between us, and my voice is also a type of here communication tool. This voice is also your, this verbal communication is also possible with the language, and the written text is also a form of communication.
So with the same time, we use different symbols to deliver the information, to exchange the information, just as your road signs at the side of your road, where that gives certain information to the driver that there is something nearby the road. Maybe there is a mosque near the road, there is a school coming in the way, so be careful. Or be careful, there is certain construction in the way. So these are all different signs. And traffic signals are also the signs, means that is also a form of language which is communicating certain information to between two bodies. So to come up with the computer education, computer programming language is a computer language which is used by the programmers to develop certain softwares, write programs, scripts, and other set of instructions for the computer to execute. Although many languages share similarities, each has its own syntax. Just as we use English to communicate, we use Urdu to communicate, and there are many other international and national languages exist which their speakers use to communicate, and every language shares similarities, just as every language has its own grammar, its own alphabets, but every language has its own syntax. Once a programmer learns the language rules, syntax, and structure, they write the source code in the text editor or IDE. Means whenever we need to write the code in any programming language, first we have to understand that language rules, syntax, and structure. Just as if you want to write an essay in German, in Spanish, what you will do? First, we have to understand that language, its characters, its alphabet, its rules, syntax, and proper grammar, punctuation, and composition. Each thing we have to understand, and then we can write the code, or we write our essay in that language. What is this IDE? In computer programming, whenever we want to write a source code, we want to write a computer program in any programming language, that programming language gives us an IDE. IDE stands for Integrated Development Environment, where programmer can write different source code of that language to create or develop different programs in that language. Then programmer often compiles the code into machine language. As a language has different levels, in human languages we also have different levels of communication, different languages at this level of communication. Just as we use our dialects in our home to communicate, डायलेक्ट्स बोली, वो बोली जो हम घरों के अंदर बोलते हैं, बोली आपके किसी एक कौम के साथ, किसी एक नस्ल के साथ हो सकती है, किसी इलाके के साथ हो सकती है, किसी जोग्राफियाई बाउंड्री के अंदर। जैसे हम यहाँ के अंदर मानसरा में रहते हैं, तो मोस्टली हमारी बोली जो है वो क्या होती है, हिंदको है, जिसके अंदर हम अपने घरों के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और अब इस बोली से हम ऊपर आते हैं, तो अब एक जैसी बोली बोलने वाले लोगों को किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है कि एक बंदा क्या कह रहा है और दूसरे को समझ ना आ रही हो। दोनों एक ही बोली के हैं तो आसानी से समझ लेते हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। फिर इस बोली के ऊपर अगर हम आते हैं तो लैंग्वेज, डायलेक्ट और लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, ठीक है। डायलेक्ट आपकी रीजनल या जोग्राफिकल लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन टूल होती है, जबकि लैंग्वेज जो है वो आपकी नेशनल लेवल पर बोली जाने वाली कम्युनिकेशन टूल होती है, यूज़ की जाती है। और इसी तरह जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं, तो जो डायलेक्ट है, जो मशीन अंडरस्टैंड कर लेती है, जिसमें मशीन को किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है कि वो बताए कि सोर्स कोड में क्या लिखा हो और क्या करना है, तो वो लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए जो नेटिव लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जो डायलेक्ट है, वो क्या है, मशीन लैंग्वेज है, जो 0-1 की फॉर्म में है। जो 0-1 जो मशीन का इंस्ट्रक्शन सेट होता है, मदरबोर्ड के अंदर जो डेटा ट्रेवल करते हैं मशीन लैंग्वेज में, 0-1 में वर्ड्स में ट्रेवल करता है। तो जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लेवल्स को देखा जाए, तो उसकी डायलेक्ट लेवल कौन सी है, मशीन लैंग्वेज,
जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम तो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है, जिसमें सिंपल निमोनिक्स यूज़ किए जाते हैं। थोड़ी सी मशीन लैंग्वेज से कहते हैं कि ये क्या है, आसान होती है। इसके अंदर सिंपल वर्ड्स का यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के दौरान, जबकि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और वहाँ पर उसको फिर क्या ज़रूरत पड़ता है, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसे ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसी तरह जैसे आप देखें घरों के अंदर हमारे वो लोग जो कि हमारे वो बुज़ुर्ग जिन्होंने सिर्फ हिंदू में कम्युनिकेशन किया हुआ है, अब आप उनके सामने उर्दू बोलना शुरू कर दें, इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, तो क्या वो आसानी से समझ लेंगे? नहीं समझ सकते। फिर उनको आपको समझाना पड़ता है, या तो आप खुद वहाँ पे ट्रांसलेटर का काम करते हैं, खुद उसको उनकी आसानी के साथ जो है उनको समझाते हैं उस डायलेक्ट के अंदर जो वो समझ सकते हैं। इसी तरह मशीन लैंग्वेज में भी होता है कि असेंबली लैंग्वेज के लिखे हुए सोर्स कोड जब वो नहीं समझ सकते तो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर के तौर पे काम करता है, और उसे हम क्या कहते हैं, ज़ेबलर कहते हैं। फिर इससे ऊपर जब हम आते हैं लो लेवल से हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ आते हैं हम, मीन्स कि आप उर्दू से इंग्लिश की तरफ इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरफ जाते हो। तो अब इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या होती है, वो आपके पास जोग्राफियल बाउंड्रीज से निकली हुई होती है। ये एक ऐसी ज़बान होती है, एक ऐसा कम्युनिकेशन टूल होता है जिसको आप कह लें कि ऑल ओवर द ग्लोब जो है अंडरस्टैंड करने वाले लोग मौजूद होते हैं। तो मशीन लैंग्वेजेस के, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर भी लो लेवल से ऊपर हायर लेवल लैंग्वेज होता है। हायर लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड्स जो लिखे होते हैं वो मशीन लैंग्वेज के में कन्वर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि मशीन जो है, कंप्यूटर एक मशीन है तो मशीन उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह प्रोग्रामर जो कि करते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर, तो उन सोर्स कोड को कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसलेटर्स कहलाते हैं। और ट्रांसलेटर्स तीन तरह के होते हैं, इंटरप्रेटर, असेंबलर पहले आता है जो असेंबली लैंग्वेज के साथ काम करता है, फिर इंटरप्रेटर और फिर कंपाइलर आता है। इनके डिफरेंसेस आगे चलकर हम मज़ीद भी एक्सप्लोर करेंगे अगली क्लासेस में, बट यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो उसके अंदर आपने क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़ कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर इनपुट भी लेनी होती है, आउटपुट भी देना होता है, प्रोसेस भी करवाना होता है। जैसे फ्लो चार्टिंग के अंदर आप देख चुके हैं कि हमने डिफरेंट जो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं उनके लिए कुछ इनपुट्स लेनी होती हैं, कुछ प्रोसेसिंग करवानी होती है जिससे आउटपुट जनरेट होता है, और वो हमने डिस्प्ले करवाना होता है। तो इस तरह वो क्वांटिटीज़ जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं वो नेचर में दो तरह की होती हैं। विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू during execution of the program is called constant, whereas the quantity which change its value during execution of the program is called variable. Variable is clear by its name. Vary means changeable, constant means remains same. So जो वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी प्रोग्राम के अंदर वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट कहलाएगी। और जो चेंज हो सकती है वो क्या कहलाती है, वेरिएबल। अब जी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स मेरे पास वो स्टैटिक वैल्यूज़ होती हैं जो GW बेसिक इंटरप्रेटर यूजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। अब ये GW बेसिक कहाँ से आ गया, तो बेटा जी यहाँ से अगले जो हमने प्रोग्रामिंग जितनी सीखनी है वो हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है वो कौन सी है, GW बेसिक की लैंग्वेज है। उसके बाद ओके, GW बेसिक के अंदर जो एग्जीक्यूशन के दौरान ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो हमारे पास वैल्यूज़ स्टैटिक रहती हैं वो क्या कहलाती हैं, कॉन्स्टेंट्स कहलाती हैं। और ये कॉन्स्टेंट्स कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर GW बेसिक के अंदर कितनी तरह के हैं, दो तरह के हैं, स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इज़ अ सीक्वेंस ऑफ 0 to 255 अल्फा न्यूमेरिक्स। अल्फा न्यूमेरिक डेटा की टाइप्स में, बेसिक डेटा टाइप्स में हमने पढ़ी थी ना, टाइप ऑफ डेटा कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। अल्फ़ाबेटिक डेटा जिसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो सकते हैं और इसके अलावा कोई चीज़ अपनी यूज़ कर सकते हैं। फिर न्यूमेरिक डेटा होता है जिसमें 0 से 9 के कॉम्बिनेशन में हम फिगर्स लिखते हैं और उसमें और कोई सिंबल नहीं आप यूज़ कर सकते। और इसी तरह से हमारे पास इन दोनों का मिक्स से भी एक डेटा की टाइप बनती है जिसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कहते हैं, जिसमें आप कैरेक्टर्स भी लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी लिखते हैं और उसके साथ साथ क्या है, सिंबल्स को भी आप
यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग जो बनती है वो क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ 0 to 255 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन अ डबल कोटेशन मार्क्स। कि जब आप इसको बेसिक लैंग्वेज के प्रोग्राम में लिखते हो कांस्टेंट को, तो ये जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है ये 0 से 255 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में लिखा जाता है और ये डबल कोटेशन में वैल्यू लिखी जाती है। और आगे एग्जांपल आपको दी हुई है जी, जब आप हेलो लिखते हैं तो ये डबल कोट में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ये आप देखें डॉलर साइन के साथ एक फिगर आगे लिखी हुई है 25,000.00। अब पॉइंट भी एक करेक्टर है, कॉमा भी एक करेक्टर है, डॉलर साइन भी करेक्टर है, इसलिए ये वैल्यू क्या बन गई, अल्फा न्यूमेरिक बन गई। आगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ये भी पूरा आपके पास एक स्ट्रिंग बन गया और हेलो भी क्या है, स्ट्रिंग है। आगे न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वो क्या है, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स जो नंबर से लिखे जाते हैं, तो नंबर्स के साथ लिखा गया डेटा क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। व्हेन यू एंटर अ न्यूमेरिक कांस्टेंट इन GW बेशक यू शुड नॉट टाइप द कॉमास। जब आप इनको अल्फा न्यूमेरिक डेटा में टाइप करते हो तो वहाँ पर आपको क्या है, कॉमर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर 10,000 लिखना है तो डायरेक्ट 1 के साथ आगे 4 डालें, 4 फिगर्स डालेंगे तो वो आपके 10,000 को रिप्रेजेंट करेगा। आगे मजीद टाइप्स बताई हुई हैं जी, कि हमारे पास न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में इंटीजर, फिक्स्ड पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आर द नेम दैट यू हैव चोजन टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज यूज्ड इन द GW बेसिक। ये वो डेटा कंटेनर्स हैं जिनके अंदर आपकी एक्चुअल वैल्यूज आती हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मे बी असाइंड स्पेसिफिकली और मे बी द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इन योर प्रोग्राम। जिस तरह हम असाइनमेंट्स कर देते हैं या इनपुट्स ले लेते हैं तो वो भी वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की। और जब कैलकुलेशन के दौरान जैसे आप फार्मूलाज वगैरह लगा के कैलकुलेशंस करवाते हो तो वो जो रिजल्ट वैल्यूज हैं वो भी हम वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। इफ़ अ वेरिएबल इज असाइंड नो वैल्यू, अगर आप GW ऐसे के प्रोग्राम में किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल को नो वैल्यू असाइन करते हो, कोई वैल्यू नहीं देते, तो बेसिक क्या कंसिडर करता है जी कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ये आपकी बुक का एक डिफरेंस का कॉलम है, इसको देख लेते हैं। वेरिएबल इज अ लोकेशन इन मेमोरी वेयर वैल्यूज आर स्टोर्ड। जबकि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। मीन्स के वेरिएबल जो है वो क्या है आपका, वो लोकेशन है मेमोरी की, वो मेमोरी बाइट्स हैं जिनके ऊपर आप डेटा स्टोर करते हैं। और कांस्टेंट क्या है, दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ज़ाहिर वेरिएबल है ना, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकता है, बट क्या है, कांस्टेंट रिमेन सेम। एग्जांपल्स आगे आपको दी हुई हैं, BCD जो भी आप वेरिएबल के नेम रखते हो, और ये टेम्परेचर भी हो सकता है, टाइम वेदर भी हो सकता है, BCX भी हो सकता है। और जो आगे कांस्टेंट के एग्जांपल्स हैं जी, उसके अंदर जैसे पाई आप एक वैल्यू है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है, आप उसकी पाई वेरिएबल भी रख सकते हो। स्मॉल g जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए यूज़ होता है, आप वो भी एज ए वेरिएबल रख सकते हो। कांस्टेंट रख सकते हो। लेंथ ऑफ 1 मीटर, वो हमेशा 1 मीटर की लेंथ जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट ही है। 36, 35, दीज आर द कांस्टेंट्स इन इट्स नेचर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन का चार्ट था। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर। Hopefully you all understood today's points. Inshallah we will continue in next class. Thank you.